Hello everyone. Today in this video we will be doing the explanation of the second part of the chapter Discovering Tut, the saga continued. In the last part we had been reading about different investigations that had been done on King Tut's death. Now let's move on to the second part. Archaeology had changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. So archaeology means study of human history. So in all these decades now, there has been a great deal of change in archaeology. Nowadays they don't focus on treasure, they focus on other details such as life and death and how people died or other details regarding life. सो पहले जो आर्कियोलॉजी थी उसमें जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे वो टूम के साथ मिले हुए खजाने पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनका फोकस जो है उस खजाने से मिस्ट्रीज़ की तरफ चेंज हो गया है जो कि लाइफ और डेथ से रिलेटेड है. इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. Now archaeologists had started using sophisticated tools. Sophisticated means more advanced tools and medical technology. So अब archaeologists ने ज़्यादा advanced tools का यूज़ करना शुरू कर दिया है, नई medical technology का यूज़ करना शुरू कर दिया है. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. So Carter discovered Tut's mummy in 1922, and almost after 40 years of that, an anatomy professor x-rayed the mummy of Tut, and he told a very surprising fact. कार्टर ने 1922 में टट की टूम को डिस्कवर किया था और उसके लगभग 40 सालों बाद 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने टट की मम्मी को एक्सरे किया और उस एक्सरे के बाद एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आया. एंड व्हाट वाज दैट फैक्ट? इट वाज दैट बिलो द रेजिन दैट कवरिंग हिज चेस्ट, Tut's breastbone and front ribs are not in their place and they are missing. तो वो फैक्ट ये था कि जो चेस्ट के ऊपर रेजिन लगा हुआ है, जब एक्सरे किया गया तो पाया गया कि उस रेजिन के नीचे जो ब्रेस्टबोन होनी चाहिए थी और फ्रंट रिब्स होनी चाहिए थी वो वहाँ पर नहीं है और वो वहाँ से मिसिंग है. Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross-section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. So now there is an advanced technology where you can get a three-dimensional image with the help of CT or we can say computed tomography. So अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और हम CT की हेल्प से एक 3-dimensional इमेज हमको मिल सकती है. You can put 100 of X-rays together and can get a 3D virtual body and information in detail. So पहले के कंपैरिजन में अब ये एक्सरे करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है सीटी की वजह से. और सीटी स्कैन जब हम करते हैं उसमें हम बहुत सारे एक्सरेज को, हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज की स्लाइड्स को क्रॉस सेक्शनल रखते हैं एक दूसरे के ऊपर और उससे हमें एक 3D डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी मिलती है जिससे हम किसी भी बॉडी को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके बारे में ज़्यादा इंट्रिकेट डिटेल्स हमें मिल सकती हैं. What more could a CT scan reveal of Tut than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? So people were thinking that already X-rays had revealed many things about Tut's mummy and what new could we get through CT scan? And people had doubt in mind that can CT scan give the answers of those lingering questions? तो उन लोगों को ये लग रहा था कि पहले ही टट की मम्मी का एक्सरे किया जा चुका है और बहुत सारे फैक्ट्स उससे सामने आ चुके हैं, तो क्या अब जो ये एडवांस टेक्नोलॉजी आई है जिसमें वो सिटी स्कैन कर सकते हैं, तो क्या सिटी स्कैन के थ्रू उन्हें कुछ ज़्यादा आंसर्स मिल पाएंगे एक्सरे के कंपैरिजन में? और लोगों के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो टट की डेथ के बारे में दो सबसे बड़े क्वेश्चन अभी तक लटके हुए हैं, जिनके सोल्यूशन नहीं मिले हैं, जिनके आंसर्स नहीं मिले हैं, क्या सिटी स्कैन के थ्रू वो मिल सकते हैं? एंड व्हाट वर दोज टू क्वेश्चंस? दैट वाज हाउ डिड ही डाई, कि टट की डेथ जो है वो कैसे हुई है, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और जब टट की डेथ हुई उस वक्त उनकी एज क्या थी.
these were the two most important questions for the people who were doing studied about टट। तो जो भी लोग टट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो भी उसकी बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनके लिए यही दो सबसे बड़े क्वेश्चन हैं और इन दो क्वेश्चंस के आंसर ही उन्हें ढूंढने हैं। King Tut's demise was a big event, even by royal standard. So when he died, it was a big event because he belonged to royal family. किंग टट की जो डेथ थी वो एक बहुत बड़ा इवेंट थी क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे एंड ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी। सो किंग टट वॉज लास्ट इन हिज डायनेस्टी, ही वॉज लास्ट हेयर ऑफ दिस रॉयल फैमिली एंड हिज डेथ शुक द होल डायनेस्टी बिकॉज ही वॉज द लास्ट हेयर। सो किंग टट जो है अपनी पूरी फैमिली के लास्ट हेयर थे, लास्ट सक्सेसर थे, लास्ट उत्तराधिकारी थे और उनकी डेथ की वजह से पूरी डायनेस्टी हिल गई बिकॉज उसके बाद उस डायनेस्टी में कोई भी रूलर नहीं बचा। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड हिज आफ्टरमैथ आर अनक्लियर, बट स्टिल इट इज़ नॉट क्लियर दैट हाउ किंग टट डाइड एंड व्हाट हैपन टू हिम आफ्टर हिज डेथ। लेकिन अभी तक भी किंग टट की डेथ के रीज़न क्लियर नहीं है और उनकी डेथ का क्या रिजल्ट हुआ ये चीज़ें भी अभी तक क्लियर नहीं है। एमेनोटप III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. So now the writer telling us about the history of King Tut, he says king's father or grandfather, that means it is not clear. So his name was Amenhotep III and he was a very powerful king and this man was able to rule for 4 decades, that means for around 40 years during the golden age of this 18th dynasty. सो अब जो राइटर है वो हमें किंग टट की फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और वो एक पावरफुल किंग के बारे में बताते हैं जिनका नाम है एमेनोटप III। लेकिन अभी तक ये श्योर नहीं है कि वो टट के फादर थे या ग्रैंडफादर थे, लेकिन ये एमेनोटप III जो है ये बहुत पावरफुल फ़ैरो थे, बहुत पावरफुल किंग थे और इन्होंने लगभग 40 सालों तक, लगभग 4 डिकेड्स तक इन्होंने रूल किया और उस वक्त ये जो डायनेस्टी थी ये 18 डायनेस्टी थी और वो जो टाइम जिस वक्त एमेनोटप III जो है रूल कर रहे थे वो इस डायनेस्टी का गोल्डन एज था। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt. After Amenhotep III's death, his son Amenhotep IV came to throne and there began a very strange period in the history of ancient Egypt. Amenhotep III के बाद उनका बेटा Amenhotep IV जो है वो गद्दी पर आया और ये कहते हैं कि उनके आने के साथ ही एंशिएंट इजिप्ट का एक बहुत ही अजीब सा पीरियड स्टार्ट हो गया। एंड वाई इट वॉज स्ट्रेंज? बिकॉज द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन द सन डिस्क, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten, known now as Amarna. So this new king promoted the worship of Aten, and Aten was sun disk, that means he was a kind of a sun god, and he changed his own name to Akhenaten, and the meaning of Akhenaten is servant of the Aten. सो जो ये नया किंग था एमेनोटप IV, इसने क्या किया, इसने एटन की वर्शिप को प्रमोट किया। एटन जो है वो सन गॉड हैं, उनको प्रमोट किया और अपना नाम एमेनोटप IV से चेंज करके एखेनेतन रख लिया, जिसका मीनिंग होता है सर्वेंट ऑफ एटन। ओके, एटन जो गॉड है उनका सर्वेंट। एंड ही ऑल्सो मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थीव्स टू अमारना, और इस नए किंग ने अपनी जो रिलीजियस कैपिटल थी जो कि पहले थीप्स हुआ करती थी वहाँ से इसे एखेटेटन शिफ्ट कर दिया। सो एखेटेटन जो प्लेस है वो अब अमारना के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे चेंजेस जो थे ये एमेनोटप IV ने किए और अपना नाम जो है एखेनेतन के नाम पर चेंज कर दिया। दैट्स वाई इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज पीरियड ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन, अ मेजर गॉड, smashing his images and closing his temples. And after all these things, this new pharaoh Akhenaten took a very shocking step. He destroyed all the images of Amun. Amun was a major god at that time, and he also closed all his temples. So इन सारे changes के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ जो Akhenaten ने की वो ये थी कि उस वक्त एक major god हुआ करते थे Amun नाम के। So Akhenaten ने
अमुन की जो वर्शिप थी उस पर पाबंदी लगा दी, सारे टेम्पल्स उनके बंद करवा दिए, उनकी सारी जो इमेजेस थी, सारी जो उनकी मूर्तियाँ थी, सब कुछ बंद करवा दिया। और एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी पूरे देशवासियों के लिए। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. So there is a person named Ray Johnson and who is the director of the University of Chicago Research Center in Luxor. So रे जॉनसन नाम के एक डायरेक्टर हैं जो शिकागो रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। वो कहते हैं कि इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम। The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. ओके, सो रे जॉनसन इज सेइंग कि वो टाइम जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा होगा जब ये सारे चेंजेस हो रहे होंगे। जिस वक्त अखेनेतन रूल कर रहा था वो टाइम बहुत खतरनाक होगा, बिकॉज दैट फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरी, क्योंकि वो जो फैमिली थी जो सालों से वहाँ पर रूल करती हुई आ रही थी, दैट वॉज कमिंग टू एन एंड, अब वो अपनी समाप्ति की ओर थी। एंड देन अखेनेतन वेंट अ लिटिल वैकी, और उस वक्त जो अखेनेतन है वो लिटिल वैकी हो गया था, दैट मीन्स वो पागल हो गया था और पागलों की तरह वो हरकत कर रहा था। वो टाइम जो है बहुत ही मुश्किल का समय रहा होगा, ऐसा वो कहते हैं। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Ismenkhare appeared briefly and exited with hardly a trace. So after the death of this Amenhotep IV or Akhenaten, there was a new ruler and his name was Ismenkhare, but he ruled only for a very short period and did not leave any sign of his ruling period or work whatever he did. सो अखेनेतन के डेथ के बाद एक मिस्टीरियस रूलर ने वहाँ पर रूल किया, उसका नाम था इसमेनखरे, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए उन्होंने रूल किया था और उन्होंने अपने किसी भी काम का कोई साइन वहाँ पे नहीं छोड़ा था, या हम कह सकते हैं उन्होंने कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं किया था जिसके लिए उन्हें याद किया जा सके। सो उन्होंने अपने पीछे अपनी कोई भी ऐसी निशानी नहीं छोड़ी। एंड देन अ वेरी यंग टुटनखेतन टुक द थ्रोन, King Tut, as he is widely known today. So after Ismenkhare, a very young ruler came to throne, and his name was Tutankhaten. So this young king was actually King Tut, and his full name was Tutankhaten. सो इसमेनखरे के बाद में एक बहुत ही यंग रूलर, बहुत ही छोटा, एज में जो कम हो, बहुत ही छोटा रूलर जो है वो गद्दी पर आया और उसका नाम था टुटनखेतन। एक्चुअली जो टुटनखेतन है उसे टट के नाम से ही हम जानते हैं, दैट मीन्स किंग टट का जो फुल नेम था वो था टुटनखेतन। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टुटनखामुन, लिविंग इमेज ऑफ आमुन, एंड oversaw a restoration of the old ways. So this King Tut, he changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun, and the meaning of Tutankhamun is living image of Amun. सो किंग टट ने अपना नेम जो है वो टुटनखेतन से टुटनखामुन में चेंज कर लिया, और टुटनखामुन का मीनिंग होता है लिविंग इमेज ऑफ आमुन। We have read that at the time of Akhenaten, he closed all the temples of this god Amun, and he prohibited his worship also. So Akhenaten ने अपने टाइम पर ये जो गॉड थे आमुन, इनकी पूजा पर पाबंदी लगा दी थी और इनके सारे मंदिरों को बंद करवा दिया था। लेकिन जब किंग टट जो है वो गद्दी पर आए, उन्होंने सबसे पहले अपना नाम जो है वो लिविंग इमेज ऑफ आमुन यानी कि टुटनखेमुन उन्होंने अपना नाम रखा, एंड ही रिस्टोर्ड ऑल द ओल्ड वेज, और जितने भी पुराने तरीके थे, जो भी पुराने कस्टम्स थे, उन सबको उन्होंने रिस्टोर किया। दैट मीन्स उन्होंने दोबारा से गॉड आमुन की वर्शिप को स्टार्ट करवाया। ही रेन फॉर अबाउट 9 years and then died unexpectedly. So King Tut ruled for about 9 years and then suddenly he died. King Tut ने लगभग 9 सालों तक रूल किया और उसके बाद अचानक से अनएक्सपेक्टेडली उनकी डेथ हो गई। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. Okay, so Tut's mummy doesn't know that how much famous he was, and people speculate about his death, and it was just a mummy among many in Egypt. So Tut की जो मम्मी है उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि Tut कितना फेमस था, और लोग उनके फेट के बारे में स्पेकुलेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं। ऐसा उस Tut की जो मम्मी है उसको ऐसा कोई भी आइडिया नहीं है, और वो इजिप्ट में बहुत सारी मम्मियों की तरह ही उनमें से एक मम्मी है।
How many? No one knows. So we don't know that how many mummies are there in Egypt. हम में से किसी को भी नहीं पता कि इजिप्ट में accurately कितनी mummies हैं. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. So there was a project called the Egyptian Mummy Project, and it began in 2003, and they started an inventory. That means they started collecting the mummies, and it has recorded almost 600 mummies so far, and still they are continuing their work of counting mummies. So एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2003 में जिसका नाम था इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट. उसमें इन लोगों ने सारी ममीज़ को कलेक्ट करके उनकी काउंटिंग करनी शुरू की थी. तो अब तक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो 600 ममीज़ को काउंट कर पाए थे और अभी भी उनका ये काम कंटिन्यू था. The next phase is scanning the mummies with a portable CT machine donated by National Geographic Society and Siemens. Its manufacturer, King Tut, is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. So the next phase of this project was to scanning of the mummies. जो next phase था काउंटिंग के बाद वो इस प्रोजेक्ट का वो ये था कि उन्होंने सारी ममीज़ को स्कैनिंग करना शुरू किया. And they were doing the scanning with a portable CT scanner that has been donated by National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. तो ये जो CT स्कैनर था जो कि यूज़ किया जा रहा था इन मम्मी की स्कैनिंग के लिए, ये नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने और सीमेंस ने जो कि इसके मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने ये इस काम के लिए डोनेट किया था. किंग टट वॉज द फर्स्ट ममी विच वॉज स्कैंड. सो किंग टट की जो ममी थी वो पहली ममी थी जिसकी स्कैनिंग की गई थी. And just like we scan the body during the lifetime, so here King Tut's body was the first mummy to be scanned after death. जनरली जो CT स्कैन है वो ड्यूरिंग लाइफ टाइम ही होता है, लेकिन यहाँ पे मम्मीज़ की स्कैनिंग की जा रही थी. तो किंग टट की जो मम्मी थी वो पहली मम्मी थी जिसको डेथ के बाद स्कैनिंग की गई थी. एंड ही वॉज द फर्स्ट वन अमंग हिज कंट्रीमैन whose body was scanned, whose mummy was scanned. So in this way he is royally moving ahead of others. So as we know कि किंग टट की मम्मी जो थी वो पहली मम्मी थी जिसकी स्कैनिंग की गई थी. तो इस तरीके से वो अपने सारे जो कंट्रीमैन थे उनमें सबसे आगे थे और बाकी सारी मम्मीज़ जो थी उसके बाद उनकी स्कैनिंग की गई. तो बाकी सारी मम्मीज़ ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनको फॉलो किया. A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1,700 digital X-ray images in cross section. So the CT machine scanned the mummy from head to toe and it created 1,700 digital X-ray images. उस CT मशीन के थ्रू मम्मी को हेड से लेकर टो तक का स्कैन किया गया और उसमें लगभग 1,700 डिजिटल एक्सरे इमेज जो है वो अपीयर हुई. Tuts had scanned in 0.62 mm slices to register its intricate structures, takes on every detail in the resulting image. So the head of Tut was scanned in 0.62 mm slices and the measurement of the image is 0.62 millimeter and it showed all the fine details of the head. And finally when result came out, every fine detail, every strange detail was there in the image. So जब टट के हेड की स्कैनिंग की गई तो बहुत ही छोटे मिलीमीटर्स के स्लाइसेस में उसको स्कैन किया गया ताकि उनके हेड से सारी छोटी छोटी डिटेल्स भी ली जा सकें. और जब CT स्कैन की जो रिपोर्ट्स आई उसमें ये देख सकते थे कि उनका जो सर था उसकी बहुत सारी फाइन और स्ट्रेंज जो इमेजेस थी वो वहाँ पर थी. With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long. So whole body of Tut was scanned similarly and there was a team who was working on it and it consists people from radiology and forensic and from anatomy department. So they all started looking at the body to find out the secret. What was the secret which they wanted to reveal? It was that how years old was Tut when he died and how he died.
सो जब टट की बॉडी की स्कैनिंग की गई, उसके बाद वहाँ पर एक बहुत सारे लोगों की टीम थी, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट थे, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लोग थे, एनाटॉमी डिपार्टमेंट से लोग थे, और वो सारे उन सारी सिटी स्कैन की इमेजेस को स्टडी कर रहे थे ताकि वो उन सीक्रेट्स का पता लगा पाएँ। वो सीक्रेट्स क्या थे कि टट की जो डेथ हुई थी उस वक्त टट की एज क्या थी और उनकी डेथ का रीज़न क्या था। एंड द राइटर से दैट द सीक्रेट वॉज प्रोटेक्टेड बाय अ winged goddess of this burial shrine for a very long time। सो राइटर कहते हैं कि जो सीक्रेट था, जो कि ये सारे लोग पता करने की कोशिश कर रहे थे, इस सीक्रेट को एक विंग्ड गॉडेस ने, एक पंखों वाली गॉडेस ने, एक पंखों वाली देवी ने, जो कि इस बरियल श्राइन की, दैट मीन्स उसके टूम की, उसकी कॉफिन की जो एक देवी है, उसने इस सीक्रेट को बहुत लंबे समय से प्रोटेक्ट करके रखा था, बचा के रखा था। लेकिन अब ये सब जो लोग हैं ये इस सीक्रेट को पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। The night of the scan, workman carried Tut from the tomb in his box. So on the night of scanning, the workman carried Tut's body from his tomb. So जिस दिन स्कैनिंग होनी थी उस रात को वर्कमैन जो थे वो टट की बॉडी को टूम से उनके बॉक्स में, उनके कॉफिन में बाहर लेकर के आए। Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside. So those workmen were looking like pallbearers. Who is pallbearer? One who carries the dead body. जो डेड बॉडी को लेकर जाता है उसे pallbearer कहते हैं। सो ये जो वर्कमैन थे pallbearer की तरह ही लग रहे थे, उसी तरीके से उन्होंने टट की बॉडी को उठा रखा था। So like pallbearers, they were holding the body of Tut and they climbed up some stairs because we knew that the tomb was 26 feet underground. जो टट की टूम थी वो 26 फीट अंडरग्राउंड थी, ये हमने पहले पढ़ा था। तो वहाँ से बाहर आने के लिए उन्होंने कुछ सीढ़ियाँ ली और वो उन सीढ़ियों में पॉलबेरर की तरह उसकी बॉडी को पकड़ करके बाहर लाई। And after climbing up, when they came out, there was swirling wind outside and the sand was flying around. So जब वो उस टट की बॉडी को बाहर लेकर के आई तो उन्होंने बाहर देखा कि मौसम जो है बहुत ख़राब है। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि उस दिन जो नेचर था वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो नेचर इसके अगेंस्ट है। सो बाहर बहुत तेज़ी से हवा चल रही थी और उस हवा में जो है सैंड उड़ रही थी, रेत जो है यहाँ वहाँ उड़ रही थी। Then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. There was a hydraulic lift that was inside a trailer and that hydraulic lift was holding the scanner. So एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में स्कैनर को जो है सेट किया गया था और उस हाइड्रोलिक लिफ्ट को एक ट्रेलर के थ्रू वहाँ पर लाया गया था। 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. So after 20 minutes, two men came and they were rushing towards the office which was nearby and they came back with two plastic fans. So 20 मिनट के बाद दो लोग जो हैं भागते हुए आए और वो भागते हुए पास में एक जो ऑफिस था वहाँ जा रहे थे और उस ऑफिस से वो जब लौटे तो उनके पास वाइट प्लास्टिक फैन का एक पेयर था, दैट मीन्स दो प्लास्टिक फैन लेकर वो आ रहे थे। एंड वाई दे वॉन्ट दीज प्लास्टिक फैंस? बिकॉज द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। Curse of the Pharaoh, joked a guard nervously. Because of the bad weather, the sand was flying around and that sand had entered in the cooler fan and the scanner had stopped working. तो कूलर फैन में सैंड फंस गई थी, रेत फंस गई थी और उसकी वजह से जो $1 million का वो स्कैनर था उसने काम करना बंद कर दिया था बिकॉज कूलर फैन काम नहीं कर रहा था और इसीलिए कूलर फैन के बजाय वो प्लास्टिक फैंस का यूज़ करना चाहते थे और इसीलिए उन प्लास्टिक फैंस को वो लेकर आए। कर्स ऑफ द फेरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। सो वन ऑफ द गार्ड हु वाज स्टैंडिंग देयर ही जोक्ड नर्वसली। व्हाट डिड ही से? ही सेड दैट द स्कैनर इज नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ द कर्स ऑफ द फेरो। जब उस स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया तो एक गार्ड ने एक मजाक करते हुए, ऑल्दो वो गार्ड नर्वस भी था और उसने मजाक करते हुए ये कहा कि ये फेरो के कर्ज की वजह से हो रहा है और बिकॉज हमने किंग को जो है डिस्टर्ब किया है और उन्हीं की वजह से, उनके कर्ज की वजह से जो श्राप उन्होंने दिया है लोगों को, उसकी वजह से स्कैनर काम नहीं कर रहा। Eventually, the substitute fence worked well enough to finish the procedure. So those plastic fence that they got were able to do the job and the scanning was over. So इन substitute fence की वजह से उनका काम पूरा हो गया और स्कैनिंग की जो प्रोसीजर थी वो पूरी हो गई।
After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workmen who carried him back to his tomb. So after the scanning, the team checked the data whether it is complete or not, and then they handed over Tut's body to workmen, and the workmen put his body again in tomb. सो स्कैनिंग पूरी होने के बाद वो जो टीम उस पर काम कर रही थी उन्होंने अपना पूरा डेटा चेक किया कि सारा डेटा उन्हें मिल गया है या नहीं मिल गया है, और उसके बाद उन्होंने टट की बॉडी को वर्कमैन को दे दिया ताकि वो वापस उसे अपनी टूम पर रखाएं. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. So almost after 3 hours, or we can say almost for 3 hours, the body of Tut was out for scanning, and after that it was back into his tomb where the funerary priest had laid him at the time of his death. सो लगभग स्कैनिंग में 3 घंटे लगे, और 3 घंटे के लिए टट की जो बॉडी है वो अपनी टूम से बाहर थी, और 3 घंटे के बाद जब स्कैनिंग पूरी हो गई तो वापस से उनकी बॉडी को वहीं रख दिया गया जहां पर उनकी डेथ के टाइम पर प्रीस्ट ने उनको रखा था. Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. So in the trailer, when they were checking the photos of CT scan, technician got some surprising images because every detail was very clear, and on the computer screen they could see image of King Tut. A grey hat took shape from a scattering of pixels, so they could see the head of the mummy. सो ट्रेलर में जब वो जो टीम थी वो सिटी स्कैन की इमेजेस को चेक कर रही थी तो एक टेक्नीशियन ने बहुत सारी एस्ट्रोनिसिंग, बहुत सारी सरप्राइजिंग इमेजेस जो हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई, जिसमें कि टट का जो हेड था वो ग्रे कलर का नज़र आ रहा था. एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन. So we know that CT scan can give us a 3D image. So here also they were able to check it from every direction. सो टेक्नीशियन ने उस पिक्चर को हर एक तरह से हर एक डायरेक्शन से चेक किया, बिकॉज हमें पता है कि सिटी स्कैन से हमारे सामने एक 3D जो इमेज है वो आती है और उसे हम किसी भी डायरेक्शन से देख सकते हैं. Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. So neck bone was as clear as we see in anatomy class. And other images revealed a hand, several views of the rib cage and a transaction of the skull. So different parts of the body were clearly visible, including hand, rib cage and skull. So उन्होंने उस जो इमेज थी सिटी स्कैन की उसको हर एक डायरेक्शन से चेक किया, और जो नेक बोन थी बिल्कुल उतनी साफ दिखाई दे रही थी जैसे कि हम एनाटॉमी की क्लास में देख सकते हैं. और इसके साथ ही बहुत सारी और भी इमेजेस वहाँ पर थी, जिसमें हैंड की इमेज थी, रिब केज की इमेज थी और स्कल की भी इमेज थी. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ. सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवस स्माइल्ड, विजिबली रिलीव्ड that nothing has gone seriously wrong. So Jahi Havas, who was overlooking this project, he was very tensed in now because he was worried about the body as well as the result. But now when the scanning was over and he looked at the image, he said now the pressure was ऑफ. सो जाही हवस जो थे वो इस सारे प्रोजेक्ट को देख रहे थे, उनके पास ये चार्ज था. सो अभी तक वो बहुत टेंस थे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन जब उन्होंने फाइनली सिटी स्कैन की इमेजेस को देखा तो उन्होंने बहुत रिलीफ महसूस किया और उन्होंने कहा कि अब जो प्रेशर था वो ख़त्म हो चुका था. आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, नॉट फॉर अ सेकेंड, ही सेड. I was so worried, but now I think I will go and sleep. So Jahi Havas was sitting in his chair and feeling very relieved. With a smile, he was saying all these things. He said that because of this pressure, he didn't sleep last night, but now he was relieved and nothing had gone wrong, and he feel that he will be able to take sleep now. सो जाही हवस जो है पहले बहुत टेंशन में थे, अब वो बहुत रिलीफ महसूस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब मैं जा कर के सो सकता हूँ, क्योंकि कल रात मैं टेंशन से बिल्कुल भी नहीं सो पाया, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है तो मुझे लगता है कि मुझे अब नींद आ पाएगी. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. So as soon as they left the trailer and the body was laid back to its place, the wind stopped. तो जैसे ही उन्होंने उस ट्रेलर को छोड़ा, वो सारा काम ख़त्म करके मेटल स्टेयर्स के थ्रू सैंडी ग्राउंड में आए तो उन्होंने देखा कि जो विंड बहुत तेज़ से चल रही थी, जो हवा बहुत तेज़ी से चल रही थी, वो अब चलना बंद हो गई थी. दैट मीन्स अब मौसम जो है नॉर्मल होता जा रहा था.
The winter air lay cold and still like death itself in this valley of the departed. So in this valley of departed, that means the valley of the people who had died, there the air was very cold and everything was very still just like death. सो राइटर बताते हैं कि ये जो वैली ऑफ डिपार्टेड है, दैट मीन जहाँ पर इन मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है, यहाँ पर जो हवा चलती है वो बहुत ठंडी रहती है और यहाँ पर इतनी स्टिलनेस है मानो कि जैसे डेथ हो, जैसे डेथ किसी अगर इंसान की डेथ हो जाए तो वो बिल्कुल स्टिल हो जाता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। तो जो ये वैली ऑफ डिपार्टेड है, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी कुछ ऐसा ही है, ये बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह ठंडी होती है और यहाँ पर बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं होता। Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. The writer says that you could always find a constellation. Constellation means group of stars. So there is a constellation above the entrance of Tut's tomb. राइटर बताते हैं कि टट की टूम का जो एंट्रेंस है, जो गेट है, उसके ऊपर हमेशा एक कॉन्स्टलेशन रहता है, उसका नाम है ओरियन। द इजिप्शियन बिलीव दैट दिस कॉन्स्टलेशन इज़ द सोल ऑफ ऑसिरिस। इजिप्शियन ये बिलीव करते हैं कि जो कॉन्स्टलेशन है ये ऑसिरिस की सोल है। एंड हु इज ऑसिरिस? ऑसिरिस इज़ द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। जो आफ्टर लाइफ के गॉड हैं उनका नाम ऑसिरिस है। सो इजिप्शियन ये बिलीव करते हैं कि जो आफ्टर लाइफ के गॉड हैं वो हमेशा ही ऑलवेज वॉच ओवर दिस बॉय किंग। दैट मीन्स वो जो गॉड हैं ऑसिरिस, वो हमेशा इस बॉय किंग पर, इस फेरो पर अपनी नज़र रखते हैं। एंड हु इज़ दैट बॉय किंग? दैट इज़ किंग टट। सो इजिप्शियन के अकॉर्डिंग हमेशा जो आफ्टर लाइफ के गॉड हैं वो किंग टट का ध्यान रखते हैं। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर डिस्कवरिंग टट। द सागा कंटिन्यूज एंड द सोर्स ऑफ दिस चैप्टर वॉज नेशनल ज्योग्राफिक वॉल्यूम 207. So that's all about it. Stay happy, stay healthy and keep learning. Thank you.